Let's start with adaptations in animals. So we started with the adaptations in penguins. उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट क्या कहा था? पेंगुइन्स कुछ नहीं समझ आया मुझे, जस्ट रेज योर हैंड्स. हाँ जी जितेंद्र. They are white in color and their feathers are black in color. White color, it helps in the camouflaging property, and black color, it absorbs the sun's heat. Okay. The next point, second point, Adgun. ये हो गया बेटा. हाँ जी. Sit down, sit down. So the next point is that they are having very thick skin and there is a layer of fat on their body also, that is called as blubber. Mitarthi, third point. Okay, so they always huddle together in group. हमेशा groups में move करते हैं जिसके कारण they both or these groups, ठीक है, जो penguins है इसमें they feel warm, right? और इनका जो group होता है that contains thousands of penguins. Okay, the next point. हाँ जी, last Rex. So a fine layer of feather is there on their body that helps in the proper insulation of the heat. ठीक है, वो हीट ट्रैप कर लेती है और उसको बाहर जाने नहीं देती है. नेक्स्ट पॉइंट. हाँ जी इप्सा. वेरी गुड. So they are excellent swimmers. This is the last point, that the penguins, they are excellent swimmers. And उनके कौन से characteristics उनको help करते हैं swimming में? They are having webbed feet. They are having webbed feet and streamlined body. And streamlined body. Streamlined body में कैसे wings होते हैं इनके? They are having flipper-like wings. नहीं wings लिखे. Feathers hairs के होते हैं ना. So they are having flipper-like wings that help them in the swimming. तो ये उनको swimming में help करते हैं. Okay. Any other point? Okay. So this is all about the adaptations in case of penguins. Now next write down. तो हमने पोलर रीजन्स में दो ही डिस्कस करनी थी अडेप्टेशंस. कौन कौन सी हैं अडेप्टेशंस इन पेंगुइन्स एंड अडेप्टेशंस इन पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स. ठीक है, स्नो के साथ कैमोफ्लेज करते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट विद माइग्रेशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन. व्हाट इज माइग्रेशन? So it is the movement of an organism or species from one place to another. हम क्यों माइग्रेट करते हैं, या स्पीशीज जो है वो क्यों माइग्रेट करती हैं? इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशंस. फेवरेबल कंडीशंस में आप एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की भी बात कर सकते हो. ठीक है, खाना नहीं मिल रहा उनको तो फूड की सर्च में भी वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. इन सर्च ऑफ
favorable conditions. So that is called migration. ठीक है जी, तो आज भी नहीं लिख रहा, बाहर निकाल देना मैंने कहा। लिखो लिखो। So in this particular context हम बात करेंगे माइग्रेशन में बर्ड्स की, फिशेस की, ठीक है, वेल्स की, दैट वेदर दे माइग्रेट और नॉट। तो आपको लगता है क्या बर्ड्स माइग्रेट करते हैं? Yes. Birds they migrate in search of favorable conditions जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है. Okay, and here we will be particularly discussing about one example of Siberian cranes. Siberian cranes they migrate, okay, in search of the favorable conditions. क्योंकि ये पोलर रीजन्स में रहते हैं, एंड पोलर रीजन्स में आपको पता है बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है. द टेम्परेचर गोज टू -37 डिग्री सेल्सियस. Okay, they live in Siberia. Siberia regions में रहते हैं. That's why they are known as Siberian cranes. And that is very, very cold. Cold climatic conditions होती हैं इनकी. Okay, so they can't survive in this cold particular climatic conditions. So they migrate in search of some favorable conditions. Okay. So ये कौन कौन सी प्लेसेस में माइग्रेट करते हैं? So they move to, write down, they move to भरतपुर in Rajasthan. They move to Bharatpur in Rajasthan, Sultanpur in Haryana, Sultanpur in Haryana and other parts of India. Okay, तो जब इंडिया में जो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन सेट हो जाता है और सिबेरिया में पर्टिकुलरली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस चलती हैं, तो ये सिबेरियन क्रेन्स जो हैं ये मूव कर जाते हैं टू द इंडिया साइड. ओके, वेयर इन राजस्थान एंड इन हरियाणा द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर हॉट. ओके, एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो गरम गरम रीजन्स होंगे इंडिया में वहां पर जाते हैं. So you can see they can fly many thousand kilometers. ठीक है, बहुत ज्यादा वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं. many thousand miles, 1000 kilometers वो क्या करते हैं, फ्लाई करके फेवरेबल प्लेसेस पे आते हैं. ओके, सो व्हेन अगेन जहां पर सिबेरिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, जब हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस आनी शुरू हो जाती हैं, देन दे मूव बैक अगेन टू सिबेरिया. ओके, फिर वो वापस सिबेरिया में चले जाते हैं. राइट जी, देवांग बोलिए बेटा. यस मैम, अकेले वो बस जैसे मतलब इंडिया के रीजन्स, हॉट रीजन्स में जाते हैं या फिर अलग जैसे और किसी कंट्री में भी जाते हैं? बेटा अनदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आल्सो, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो हॉटर होती हैं. ठीक है, और मैम जब जैसे इंडिया में भी अगर जैसे कोल्ड क्लाइमेट होना शुरू हो गया तो फिर वो अपने सिबेरिया वापस चल जाएंगे? हाँ जी, दे मूव बैक, जहां से आए होते हैं वहां पर वो चले जाते हैं. ओके, सो दे कैन फ्लाई हाई. ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचे वो क्या कर सकते हैं, वो उड़ सकते हैं. ठीक है, 15,000 किलोमीटर तक ये जो डिस्टेंस है दे कैन ट्रेवल. ओके, एंड दे फ्लाई. व्हेन दे फ्लाई, आप भी जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी बॉडी भी जो है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, वार्म होनी शुरू हो जाती है, हॉट होनी शुरू हो जाती है. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो व्हेन दे स्टार्ट फ्लाइंग, उनकी बॉडी में जो विंग्स हैं उनके वो हेल्प करते हैं उनकी बॉडी को वार्म करने में. ओके, तो पहले तो उनको यहाँ से ही वार्मथ जो है वो मिलनी शुरू हो जाती है. एंड यू ऑल नो, देखो हर सीजन में वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग. हर सीजन में वो ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, whenever there is cold they are traveling. और how do the birds they know that they are on the right track? कैसे बर्ड्स को पता चलता है कि वो अपने राइट ट्रैक पे हैं?
Okay, so what are the different factors that can guide the birds that they are particularly moving to the right places? अब जैसे उन्होंने इंडिया में आना है from the Siberia, how they know that they are going to a particular place? So the different destinations, they can be the movement of the sun also, day and night जो है movement, उससे उनको पता चलता है that they are on the right track. Okay, so with the movement of the sun, day and you can ask in the, this can be asked in the factors point also, या blue box का question है simply कि कौन कौन से factors हैं जो उसको direct करते हैं birds को that they are on the right track. sun की movement, day and night movement, और डायरेक्शन ऑफ विंड, और कुछ लैंडमार्क्स भी होते हैं ना, जब आप किसी सिटी में जाते हो तो आप कुछ लैंडमार्क्स पर्टिकुलरली नोट कर लेते हो ना, कोई रेस्टोरेंट हो गया या कोई अदर पार्क हो गया, कोई गार्डन हो गया, ठीक है, तो लैंडमार्क्स भी जो है वो उनको डायरेक्ट करते हैं दैट दे आर ऑन द राइट ट्रैक. और मोस्टली सारे बर्ड्स के केस में हम बात कर रहे हैं. और you know there is a magnetic field of earth also. The magnetic field of earth, it also directs the birds to move in a particular direction. ठीक है, so इन चीजों को देख के या ये चीजें जो है वो उनको डायरेक्ट करती हैं that they are moving on their right track. These all are not factors actually, these are the guiding things that guide the birds. Okay, now they are asking, do fishes and butterflies they also migrate like birds? What do you think? Fishes और butterflies जो है वो भी migrate करती हैं? Yes, वो भी करती हैं. ठीक है, though fishes they can survive under the cold water, but still there is a need, when there is need for the search of food, जब उनको खाना नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि कोल्ड है तो बहुत ज्यादा जो वाटर है वो ठंडा हो जाता है, और बिल्कुल वो सरवाइव करने के लिए उनको खाना तो चाहिए ना बेटा. ओके, सो द फिशेस, मैमल्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज आल्सो दे माइग्रेट. ओके, सो दिस इज अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. नाउ नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट राइट डाउन कर दूं ये रब बेटा. अडैप्टेशंस इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. अब हम पोलर रीजन से बाहर आ गए हैं, अब बहुत ज्यादा जो ठंडा ठंडा क्लाइमेट था ना, अब हम उससे बाहर आ गए हैं. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. कहां पर मूव कर रहे हैं हम? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट का वेदर कैसा होता है? ठंडा होता है. कैसा होता है? हॉट एंड ह्यूमिड. गर्मी वाला होता है, रेनी सीजन होता है, रेनफॉल जो है वो फ्रीक्वेंटली होती रहती है. ओके, रेनफॉल जो है वो फ्रीक्वेंटली होती रहती है. ओके, डेज एंड नाइट्स दे आर इक्वल इन देयर लेंथ. बहुत ज्यादा बड़े दिन होते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी नाइट्स होती हैं. ठीक है, दे क्वाइट आर इक्वल इन लेंथ, डे एंड नाइट. ओके, एंड जहां यहाँ पर जो कोल्ड क्लाइमेट जो है, ठीक है, विंटर्स में ऑल्सो टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक जाता है बस. दैट इज स्टिल हॉट. ठीक है, 15 कोई बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर नहीं है. राइट, नेक्स्ट राइट डाउन. मैक्सिमम टेम्परेचर जो जाता है दैट इज 40 डिग्री, अबव 40 डिग्री. 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर का टेम्परेचर जाता है मिनिमम.
कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी वो कह रहे हैं कि मिनिमम जो है वो सिर्फ 15 तक जाता है और मैक्सिमम जो है वो 40 से भी ऊपर जा सकता है। तो कितना ज्यादा हॉट है, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड है एंड दे रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ओके, रेनफॉल जो है वो होती ही रहती है। क्यों इतना हॉट एंड ह्यूमिड है बेटा ये? बिकॉज दे आर नियर टू द इक्वेटर, इक्वेटर्स के पास है। और मैंने आपको बताया था जो इक्वेटर्स के पास हैं रीजन्स वो क्या होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये इक्वेटर्स के पास है इसीलिए ये ज्यादा गर्म है। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है? राइट डाउन वेस्टर्न घाट्स, Western Ghats. Tropical rainforests are found in Western Ghats, North and Eastern parts of India, North and Eastern parts of India. Next, write down Southeast Asia, Southeast Asia, North and Central America, North and Central America, Central Africa, Central Africa, and many parts of Pacific Ocean, and many parts of Pacific Ocean. ठीक है जी, तो यू कैन बी आस्क्ड वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दे आर फाउंड। ठीक है, तो ये सारे रीजन्स हैं जहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, मेनी पार्ट्स ऑफ पैसिफिक ओशन। गर्मी क्यों होती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्यों रहते हैं? क्योंकि इक्वेटर के पास है ना, तो जो एरियाज इक्वेटर्स के पास होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक है जी, now coming to the next thing, is there a large diversity of animals living in the tropical rainforest? There is large diversity of plants and animals that live in the tropical rainforest. ठीक है, क्यों इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, क्यों इनका ज्यादा नंबर है? बिकॉज ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि उनको वहां पर फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, इसीलिए अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ओके, दे आर सर्वाइविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बट अगर कहीं पर बहुत ज्यादा नंबर है किसी चीज का, तो दैट मीन्स देयर विल बी मोर कॉम्पिटिशन ऑल्सो। ओके, तो इन एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? compete भी करना पड़ेगा। they have to compete with one another also and they have to compete with the others also, ठीक है, in order to survive, क्योंकि फूड तो लिमिटेड है बट उनका जो नंबर है that is more। ओके, नंबर मोर क्यों है? क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं उनको वहां पर, और फेवरेबल कंडीशंस होने के कारण जो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, they are surviving there। okay, so first write down adaptations in case of red-eyed frog, adaptations in case of red-eyed frog।
रेड आइड फ्रॉग मीन्स कि इस फ्रॉग की जो आईज है सबसे पहले वो रेड है. ओके रेड आईज किस में यूज होंगी? फर्स्ट पॉइंट ही है ये. मुझे ये बताओ, रेड आईज, रेड जो है वो नॉर्मली किसका सिग्नल होता है? डेंजर. ठीक है, तो सपोज रेड आइड फ्रॉग्स जो हैं वो अपना ये रेड कलर ऑफ आईज कहाँ पर यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू फ्राइटन द पर्सन. अगर कोई प्रीडेटर है, कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो उनको डराने में हेल्प करती है, क्योंकि रेड कलर बहुत ज्यादा ब्राइट होता है. ठीक है, तो जैसे ही वो रेड कलर देखेगा पर्सन, ही और शी विल फ्राइटन, और प्रीडेटर जो हैं वो डर जाते हैं. ओके, सो दिस रेड कलर ऑफ द फ्रॉग, the red eyes color of the frog, it helps to frighten the predators. Sabe, are you having any doubt? Yes, ma'am. हाँ जी. मैम जैसे आपने अभी लिखवाई एडेप्टेशंस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द एडेप्टेशंस ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो हम ये वाली लिखेंगे. That was general outline of tropical rainforest कि कैसा उनका वेदर है, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशंस है और वो कहाँ पर फाउंड होते हैं. ठीक है, ऐसे अडेप्टेशंस आपको पर्टिकुलर एनिमल्स की ही पूछेंगे. ओके ओके मैम. हम करने जा रहे हैं रेड आइज फ्रॉग. सो यू हैव रिटन the red-eyed frog has big and bright bulging eyes. हाँ ये फर्स्ट पॉइंट में ही है, आईज का ही है. red-eyed frog is having big and bulging eyes. Red, big and bulging eyes. bulging का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बड़ी है, थोड़ी सी बाहर को है. ठीक है, बल्ज कर जाती है. सो डैट हेल्प्स टू फ्राइटन द प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स को फ्राइटन करने में हेल्प करती है, उनको डराने में हेल्प करती हैं. और लिखिए बिग एंड बल्जिंग आईज. सेकेंड पॉइंट लिखिए बड़ी हैं आईज. ओके, सो दे विल हेल्प. आईज का ही पॉइंट है ये. ठीक है, these eyes, big and the bulging eyes, they will help the frog in proper vision. Okay, it will help the frog to see the prey at night. और अगर आपने सिंपली लिखना है, so you can write down in the proper vision. ठीक है, हेल्प द फ्रॉग इन प्रॉपर विजन भी लिख सकते हो, और हेल्प द फ्रॉग टू सी द प्रे क्लियरली एट नाइट. प्रे को इजीली वो देख सकता है. ठीक है, ये दोनों उसके फंक्शंस हो गए हैं आईज के. एक तो डराने में हेल्प करती हैं और दूसरा उसकी प्रॉपर विजन में हेल्प करती है. अब नेक्स्ट राइट डाउन. It has sticky pads on its feet. स्टिकी पैड्स हैं, आपने वैसे भी फ्रॉग्स के देखे होते हैं. ठीक है, फ्रॉग्स के वैसे भी जो पैड्स होते हैं, ठीक है, दे आर स्टिकी. हाँ जी, दिस इज अ थर्ड पॉइंट. नाउ 2 पॉइंट्स हमने आइस के कर लिए हैं ना. तो थर्ड पॉइंट, दे आर हैविंग स्टिकी पैड्स. Okay, so they are having sticky pads on their feet which help them. अब ये पैड्स किस में हेल्प करेंगे उनको? वो स्विम थोड़ा ना करेंगे. To climb on the trees, which help them to climb easily on the tree trunks. ठीक है, which help them to climb easily on the tree trunks.
on the tree trunks. Climb के साथ एक वर्ड लिख लो, attach also, to attach themselves, stick कर जाते हैं ना, क्लाइंब करने में भी हेल्प करेगा और वहां पर रहने में भी, अगर उन्होंने ट्रीज पे बहुत ज्यादा देर तक रहना है तो वो वहीं पे अटैच हो सकते हैं यूजिंग देयर स्टिकी पैड्स, टू क्लाइंब और टू अटैच देमसेल्फ टू द ट्री ट्रंक्स। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखिए। रेड आइड फ्रॉग का कलर कौन सा होता है? दे आर ग्रीन इन कलर। फॉरेस्ट का कौन सा कलर है? तो किसमें हेल्प करेगा? ठीक है, सो दे आर ग्रीन इन कलर, सो दे कैन हाइड देमसेल्फ इजीली, so they can hide themselves easily. In the tropical rainforest or with the green color of the rainforest. ठीक है, क्लियर हो गया? With the green color of the tropical rainforest to protect themselves from the predators. ठीक है, यही आपकी कैम्यूफ्लेजिंग में आ जाएगी प्रॉपर्टी। दिस इज द कैम्यूफ्लेजिंग प्रॉपर्टी। आगे लिखिए। Adaptations in elephants. Frogs रह सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना हमने, एम्फीबियंस का पॉइंट्स नहीं मेंशन करेंगे, हम सिर्फ अडेप्टेशंस बताएंगे कि उनके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, next write down adaptations in, you all have seen elephants. ओके, हाँ जी, बिग ईयर्स हैं, वेरी गुड, ओके, हाँ जी, और बोलिए। और सबसे पहले अगर आप ट्रंक का पॉइंट उठा रहे हो, सो देयर ट्रंक इज इलोंगेटेड नोज, उनकी जो ट्रंक है वो उनका नोज का काम करती है। ठीक है, और इस ट्रंक के क्या क्या यूजेस हैं? सबसे पहले हम ट्रंक के सारे यूजेस लिखेंगे। Write down the trunk of an elephant हाँ जी, ट्रंक के आगे elongated nose का है, nose है तो that means they will be having a strong smell। ठीक है, सो इसी में ही सब हेडिंग्स में आ जाएगा आपका ट्रंक का ही strong sense of smell, यानी कि they can sense any particular, ठीक है, स्मेल ऑफ एनी प्रीडेटर्स, तो वो बहुत इजीली जो है वो क्या कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, टू कैरी हैवी थिंग्स। ठीक है, और किस में हेल्प करती है? टू कैरी हैवी थिंग्स। आपने देखा ना, जब आप उसको कोई चीज देते हो तो दे कैच दैट विद देयर ट्रंक, और ट्रंक की हेल्प से वो अपने माउथ में उसको डालते हैं। देखा ना आपने? ठीक है, सो दे कैरी, दे होल्ड थिंग्स विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रंक। नेक्स्ट राइट डाउन, ये पॉइंट आपने कंप्लीट लिख लेना बेटा।
Okay, they carry or they put the things with the help of their trunk and they put them in their mouth using their trunk. Okay,